تو بہت اچھی ایک کنیکٹ کمرشل ہب کی ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ بھی کوئی سیمینار کروانا چاہتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایکٹیویٹی کروانا چاہتے ہیں, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل, ہم بالکل پروگرام میں ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے عالمہ اور میں بھی ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں, مسز صبا علی, جو کہ پرنسپل ہیں سینٹ پیٹر پبلک اسکول کی, جو کہ بفر زون میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زنیرہ کا سیگمنٹ بھی آج ہم کنیکٹ کریں گے, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن ویسی طویل ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے بھی طویل آپ کو ملے گی اور آپ لوگ بہت زیادہ اس سے سیکھیں گے. تو دین اور دنیا کا آج ہمارا ٹاپک ہے. جتنے ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اس حوالے سے جو بھی سوالات ہوں آپ ہم سے کر سکتے ہیں. خاص کر کے ساری ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے اور اس واقعے کے بعد آپ سے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں ابھی بھی ہمیں کامنٹ باکس میں, اور آپ بھی انعام جیت سکتے ہیں جو کہ سینس بیوٹی اسٹیشن کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا. ڈاکٹر زنیرہ کی جہاں بات کی جائے, کیونکہ روزانہ ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں وہ موجود ہوتی ہیں, کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دینی علوم اور دینی معلومات سے وہ آپ کو آگاہ کر رہی ہوتی ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر عالمہ اور میں جو سیگمنٹ جس کی ڈیمانڈ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ہم اس پر موو کریں گے, وہاں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. سائنس بیوٹی اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے ENI گروپ آف کمپنی کا. ہم لوگ بریک پہ گئے تھے اور بریک پہ جانے کے بعد ہم نے ڈسکس بھی کیا, اور کیونکہ بریک پہ جب گئے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ عالمہ اور میں جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, اور ڈاکٹر زنیرہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت سارے سوالات آپ کے لیے. سائنس بیوٹی اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے ENI گروپ آف کمپنی کا. میں چاہوں گا کچھ ایکسپلین کرنا, کیونکہ ENI کمپنی جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس کو لے کر رن کر رہی ہے اپنی کمپنی بھی, اور ساتھ میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. CSR پروجیکٹ ایجوکیشن پہ میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ دینی تعلیم پر بات ہو رہی ہے, دنیاوی تعلیم پر بات ہو رہی ہے. CSR پروجیکٹ بیسکلی کینٹ اسکولنگ سسٹم ہے جو کہ سعودی ٹاؤن میں اس وقت بن چکا ہے, اور 500 سے زیادہ طالب علم وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت ہی منیمم کاسٹ ہے, لیکن جو تعلیم کا معیار ہے وہ اسٹینڈرڈ کافی ہائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہے CSR پروجیکٹ, جسے ہم کینٹ اسکولنگ سسٹم کہتے ہیں, یہ کراچی میں کیونکہ سعودی ٹاؤن میں موجود ہے, اور جب 500 پلس اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ گلستان جوہر میں اور اس کے علاوہ مین شارع فیصل میں ایک اور برانچ اس کی بنائی جائے. تو بہت جلد جوہر میں اور شارع فیصل پہ اس کی جو ہے باقاعدہ طور پہ انعقاد کیا جائے گا, اور CSR پروجیکٹ میں کینٹ اسکولنگ سسٹم میں مطلب 2 اور اسکول کراچی میں بنائے جا رہے ہیں. تو بالکل ہم آگے یہ پروگرام کو لے کر چلیں گے, اور سوالات کا سلسلہ رکنے کو ہے ہی نہیں, کیونکہ سوالات ہوئے جا رہے ہیں, لوگ پوچھے جا رہے ہیں. اچھا, اب کیا سوال آیا ہے؟ ہاں جی, پہلے ہم قصہ سنیں گے اور اس کے بعد پھر کوشچن پہ جائیں گے. جی, وہ قصہ سچا قصہ ہے اور بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے کہ ایک بیٹا, یہ جس ابھی ہم نے بات کی, وہ باہر چلا گیا کمانے کے لیے, اور والدہ جو تھی وہ کسی قصبے میں رہتی تھی. بہت سخت ان کے اوپر ماں باپ جو تھے لڑکے کے, ایک فائنینشیل کرائسس کا وقت آیا تھا. خیر اللہ کے حکم سے وہ بیٹا گیا اور جا کر اس نے باہر چلا گیا. اب وہ ان کو اس زمانے میں یہ کوئی اس طرح سے جو آج کل ہم ان ٹچ رہتے ہیں باہر کی دنیا سے بھی, وہ صورتحال نہیں تھی. وہ خط و کتابتی جسے کہتے ہیں ہوتی تھی. وہ خط بھیجتا رہا, ماں باپ بیچارے نہ ان کے پاس علاج کے پیسے اور نہ ان کے پاس کھانے کے. شدید بیمار ہو کر رزق کی تنگی سے اور بہت سارے سورسز کی کمی کے بعد وہ والدین جو تھے ان کے, وہ بہرحال وفات پا گئے. تو اس کو خبر ملی, وہ آیا, اور تو سب محلے کے جو قصبے کے لوگ تھے سب نے اس لڑکے کو کرٹیسائز کیا کہ تم جا کر بھول گئے اپنے ماں باپ کو, اور وہ اتنے فاقے کر کر یہاں پر اب بیماری سے لڑ کر مر گئے. تو اس نے کہا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے, میں تو ہر مہینے چیک بھیجا کرتا تھا. تو جب وہ سامان اسے نکالا تو پیرنٹس نے وہ لیٹرز کھولے ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے اس کو کھولا ہی نہیں, وہ خط بھیجتا گیا اور ماں وہ خط جمع کرتی گئی. اتنے چیکس بعد میں ہر مہینے جو وہ بھیج رہا تھا 2-3 سال سے وہ برآمد ہوئے, لیکن انہوں نے کھولا ہی نہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو یہ بہت ہی ایک دکھ والی کہانی تھی اور ایک سچا بہرحال واقعہ تھا. اسی طرح سے ہمارا حال ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو بغیر سمجھے
तिलावत करके रखते जाएंगे तो हमें भी उसका वो फैज, वो इनाम उससे जो मिल सकता है, उससे जो हिदायत मिल सकती है, उससे जो फवाइद हो सकते हैं, वो हासिल नहीं हो सकेंगे। मैम सुनहरा, हम पूरी नमाज अरबी में पढ़ते हैं लेकिन आखिरी दुआ हम अपनी उर्दू ज़बान में करते, तो वो कबूल होती होगी? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अक्सर लोग ये क्रिटिसाइज भी करते हैं कि तुम्हारी दुआ का क्या फायदा, पूरी नमाज तुमने अरबी में पढ़ी। देखिए, हम अरबी में भी दुआ करते हैं। एक तो पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि जब हम नमाज में ही होते हैं, सलाम फेरने से पहले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, ये वाली दुआ हम पढ़ते हैं या दीगर दुआएं पढ़ते हैं, तो हमने सब कुछ मांग लिया। अब दुनिया भर का हर शख्स जिसकी जो जुबान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को माअज़ल्लाह किसी जुबान का ऐसा तो नहीं अवेयरनेस नहीं है। अगर हम इसको फर्ज मान लें तो जो भी कोई मुख्तलिफ जुबानों के लोग हैं, इसका मतलब तो फिर सिर्फ अरबियों की पकड़ होनी चाहिए, उनके जुमले पकड़े जाने चाहिए, उनकी नेकियां कंसीडर की जानी चाहिए। तो अल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंबिया और जो मलाइका हैं, हर जुबान से जब दिल का हाल जान लेते हैं तो फिर जुबानें क्यों नहीं। तो बाकी आप अपना हर जुबान जो आप जानते हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ दुआएं अरबी में होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी शामिल कर ही लेते हैं। अब हम करते हैं मैम सवाल की जी हाँ, बिल्कुल मैम से सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा बतलाना चाहूंगा जितने हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि आलिमा और मैं का सेगमेंट है जिसमें हम दीन और दुनिया की तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं। आप तमाम लोग जो भी कोई सवालात करना चाहते हैं वो अपने सवालात हमें इनबॉक्स में कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बतलाते चलूं आपको, सहरी ट्रांसमिशन में एक आपको वाकया सुनाया जाता है और उस वाकये के बाद आपसे सवाल पूछा जाता है, तो अभी भी कमेंट बॉक्स में आप हमें उसका जवाब दे सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। जी, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम सबा, जैसे आप प्रिंसिपल हैं तो पेरेंट्स भेज देते हैं सब कुछ, टीचर्स की जिम्मेदारी या वो आप साथ देते हैं, मतलब आप लोग का साथ दे रहे होते हैं, नहीं बस हमने भेज दिया स्कूल, आप ही पढ़ा के भेजें? नहीं, देखिए, कुछ समझदार पेरेंट्स जो हैं वो तो समझते हैं और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, बच्चे को रेगुलर भेजेंगे और फिर वो इंटरेस्ट भी लेते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और उसको क्या, और घर पर भी तवज्जो देते हैं और वो सिर्फ ट्यूशन पे डिपेंड नहीं करते, खुद देखते हैं। ये वजह होती है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो ये समझते हैं कि अब बच्चे को स्कूल भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्होंने घर आया बच्चा, उठा के पहले मदरसे भेजा, उसके बाद उन्होंने उसको ट्यूशन पे भेज दिया। बच्चे को वो खुद चेक नहीं करते कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या। हालांकि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे का रेगुलर ये देखें कि स्कूल में बच्चे ने क्या किया, ट्यूशन पर क्या किया और उसका क्या मतलब आउटपुट क्या है। मैम, मेरा एक सवाल यहाँ है कि जिस तरह आपने कहा कि स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है पेरेंट्स को चाहिए वो देखें और ट्यूशन में भी देखें। जब स्कूल ज्यादा ट्रेंड हो गया ना ट्यूशन का। जी हाँ, स्कूल जब बच्चा जा रहा है तो क्या आपको लगता है ट्यूशन की जरूरत होनी चाहिए? ये पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन है। पेरेंट्स की आप लोग सेटिस्फेक्शन नहीं, करते हैं हमारे हम ट्यूशन का। समझते हैं कि जब स्कूल बच्चा आ गया है उसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है वो घर में, क्योंकि देखिए बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो इस किस्म के कुछ प्रोजेक्ट या वो चीजें देते हैं कि जी बच्चा मुख्तलिफ एक्टिविटीज करके लाए, लेकिन जहां पर एक प्रॉपर तरीके से हर चीज स्कूल में ही कराई जा रही है तो सिर्फ घर पे उसका लर्निंग वर्क है या उसका रिवीजन होना होता है। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर पेरेंट्स में इल्म है, एजुकेशन है, तो वो दे कैन सी देमसेल्फ। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां वालिदैन खुद एजुकेट नहीं है या तो बिजी उनको हैं, जी या जी बिजी हैं, दोनों जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस सूरत में जरूरी होता है मतलब कि कोई लुक आफ्टर करे। इतना वो नहीं होता है बच्चा कैपेबल के वो जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो आके खुद कर ले, जरूरी है। पॉसिबिलिटी है, जी। पॉसिबिलिटी ये डिपेंड करता है टीचर्स पर, उन्होंने कितना अपना इनपुट दिया है बच्चे को, तो मतलब ये डिपेंड करता है ऐसा टीचर्स भी तो हो पर। सकता है टीचर्स इतना अच्छा समझा हाँ। दें कि उनको जरूरत ही नहीं हो। अच्छा, एक चीज मैं इन सवालात से अलहदा एक बात कहना चाहूंगी जो बिल्कुल। बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे पेरेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते और अगर हम बच्चों के सामने अपने उस्ताद का मर्तबा, उसकी डिग्निटी नहीं रखेंगे तो वो बच्चा कभी भी अच्छा तालीम याफ्ता इंसान नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसा सबसे ही। पहले वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के दिमाग में वो अपने उस्ताद का एक अच्छा तसव्वुर पेश करें और उसके बाद टीचर्स को भी ये कहना है कि वो भी अपने आप को एक अच्छा उस्ताद बनाएं, बच्चे से शफकत और मोहब्बत के साथ उनको पढ़ाएं और बिल्कुल सीरियस और मोहब्बत के साथ, और तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जो काम प्यार से अचीव कर सकते हैं
दूसरे लोगों से वो आम पुरतशद्दुद होकर के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए हुस्न सलूक की भी यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा जी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों से बड़ी शफकत से प्यार मोहब्बत से पेश आते बेशक, थे। जी, और जी, आजकल जी। जो बच्चे हैं वो तो जाहिर ही छोटी ही उम्र से आपको छोटी पता उम्र है मॉन्टेसरी और फिर वो उससे छोटे और जूनियर और उससे जूनियर। बिल्कुल अच्छा सही। एक और सवाल सिर्फ है मैम जी। मैम सुनहरा, आप बताएं मतलब कुरान और हदीस की रोशनी में किस उम्र में हम बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि इस चीज पे भी बहुत है, हम 3 साल में भेज देते हैं और वैसे तो है कि 7 साल में बच्चे ने नमाज फर्ज होनी है तो उस वक्त ही उसका दिमाग वो होगा, तो आप बताएं किस उम्र में इस बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी बहुत अहम बात बताई है, इस पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन जहां तक एज की बात है तो वाकई अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है, अव्वलीन दरसगाह, वो तो माँ है, माँ की गोद है। तो बच्चा जो है वो जब बोलने के काबिल हो गया तो उसको घर से पहले ट्रेन करना है। आजकल ये ठीक नहीं है, ये जो बहुत ही छोटे बच्चों को, अच्छा अगर तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो वीक में 1 घंटे के लिए ट्वाइस अ वीक जा रहे हैं, 1 आवर की क्लास, थोड़ा सा बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, थोड़ा फेमिलियर करने के लिए तो ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो 2 इयर्स के बच्चे अभी चल भी नहीं पा रहे और बैग लेके सुबह सुबह वैन में उनको फीडर भी होती है डाला, साथ-साथ। फीडर भी साथ होती है, वैन में डाला, वो सोए हुए वहां, और वो इतना अच्छे स्कूल्स दूर हैं घर से, फिर भी उनको 2-2 घंटे वो बसों में और वो वैन्स में और ट्रैफिक में फंस के जाएं, फिर वो इतने आवर्स अपने माँ बाप से इतने आवर्स दूर रहे। ये जुल्म है बच्चे के साथ। अब तो अमेरिका में भी, क्योंकि मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे थे, तो वो 5 साल से पहले जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो 5 साल से पहले अलाउ ही नहीं करते थे कि हाँ प्राइवेटली आपने थोड़ा बहुत पढ़वाना है पढ़वा लें। 5 साल से पहले बच्चे का एडमिशन नहीं लेते थे। और अब तो बाहर भी ये बहुत अवेयरनेस आ गई है कि बच्चों को ज्यादातर पहले घर से उनकी बुनियाद बनाई जाए, बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, कॉन्फिडेंट कर दिया जाए, फिर वो बाहर जाकर स्कूल में। मैम क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिसर्च भी हुई थी और देखने में ये आया था, कराची में ही कुछ स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस वक्त, एडमिशन का प्रोसेस ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए, उसका जब बे फॉर्म या जो बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं वो बन जाए, तो उसको लाजमी जमा करवाएं पहले ही, और उसके बाद उसका एडमिशन होगा। नहीं, अब 3 मैंने साल तो के अब ये अंदर। भी देखा है कि कुछ स्कूल में पेरेंट्स का भी बाकायदा इंटरव्यू हो रहा है, वो क्लियर नहीं करेंगे पेरेंट्स, तो बच्चा मतलब बच्चे को आ रही चीजें लेकिन वो फेल कर देंगे कि पेरेंट्स क्लियर नहीं हुए। अब कहेंगे मैम। ये इस सिलसिले में नहीं, देखिए ये चीज जो आपने कहा कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं होता और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना Exactly. पड़ता है, जी, उसकी वजह है कि ये सब हम लोगों की अपनी एक सोच है। देखिए बच्चे को हमें तालीम देनी है मजहबी तौर से, जैसे मैडम जुनैरा ने भी कहा कि भाई बच्चे को जो बेसिक एजुकेशन है वो घर से ही देनी पड़ती है, और हमारे मजहब में 4 साल में बिस्मिल्लाह बिल्कुल का है कि बच्चे को जो बिस्मिल्लाह, उसकी एज 4 साल की है, और हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बस बच्चा जैसे ही थोड़ा सा वो मतलब हुआ और उसको, और ये जाहिर है कि ये हमारी अपने वालिदैन की सोच है, वरना कहीं पर भी हमने ये सिस्टम नहीं देखा जो कराची में हमें ज्यादातर यहाँ पर नजर बिल्कुल। आता है कि जी आप बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड यू शुड गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर चाइल्ड। तो ये बिल्कुल गलत है, और इसको मतलब इस चीज Exactly. इस प्रैक्टिस को रुकना चाहिए, सही। क्योंकि अब तो जो हमारे यहाँ ये मिशनरी स्कूल्स हैं उनका वो वाला स्टैंडर्ड नहीं रहा है जो एक जमाने में हुआ बेशक, करता था। बिल्कुल एक जमाना, अब वहां का बच्चा मतलब वहां पे ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चा इंग्लिश बोलेगा जाकर के, सही। लेकिन आप जाकर के देख लीजिए मिशनरी स्कूल्स में क्या है, वो चीज बेशक, नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब है कि इस चीज को हमें पेरेंट्स की और दूसरे उस्ताद की जिम्मेदारी बनती है, उनको समझाएं कि भाई नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा लें, जब आप नॉर्मल स्कूल की तरफ जाएंगे तो उनको खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और जो पेरेंट्स के इंटरव्यू वाली बात है, बिल्कुल भाई, देखिए ना, आप जरूरी नहीं कि उसका उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि देखिए पढ़े लिखे वालिदैन के पढ़े लिखे फैमिली से बच्चे आए, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बताइए कि जो हमारे ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को खुद पढ़े हुए नहीं है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एजुकेशन दिलवाएं, तो क्या उनका राइट नहीं है? राइट नहीं है। तो इस तरह से उनको पेरेंट्स को डिग्रेड कर देना बिल्कुल एक नाइंसाफी की बात है, बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही। ये चीज है। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है जी। कि कुछ स्कूल्स जो हैं उन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि वो अपने पास जो बच्चे लेते हैं वो कहते हैं सिर्फ हमें ए ग्रेड और A+ चाहिए, जी। ठीक है ना, जी। तो वो डेफिनेटली जब A+ और A ग्रेड लेंगे तो वही बच्चे उसी में से बिल्कुल टॉप 100%, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन बच्चों को क्या होगा, उनके ऊपर कौन तवज्जो तो देगा? असल तो हमारे माशरे का प्रॉब्लम यही तो हो गया है कि जो A+ और मतलब वो तो बच्चा खुद पढ़ रहा है,
उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों पर तवज्जो देनी है जो नहीं पढ़ सकते, जो खुद तवज्जो उन पर देनी है। क्लास के अंदर भी थोड़े कमजोर क्लास के अंदर भी जो वीक बच्चे हैं उनको तवज्जो देने की जरूरत है, जो कर रहा है काम बच्चा उसको क्या देखने की सही जरूरत बात है, है। बिल्कुल तो सही ये तो मतलब बहुत हमारी खामियां हैं और ये पेरेंट्स को समझदार होना लाजमी है। इवन कोचिंग सेंटर्स ने भी एक मेयार बनाया है कि अगर आपके बच्चे का ए ग्रुप ए और A+ रिजल्ट है तो वो एडमिशन देंगे, अदरवाइज दे विल रिफ्यूज दैट। बच्चों को जरूरत ही नहीं है। जी उनको जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा जो है वो कम होता है, खास करके इस सेगमेंट का। और आज तो हमारे साथ माशाल्लाह मिस सबा भी मौजूद हैं और डॉक्टर जुनैरा भी मौजूद हैं। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों पे ही बात हो रही है। और अभी भी हमारे पास कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा मैसेजेस हैं और इसके साथ साथ हमारी टीम सॉर्ट आउट भी कर रही है कि कौन से सवालात जो हैं वो शामिल किए जाएं, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। कोशिश होती है कि सबके सवालात ले लिए जाएं क्योंकि इफ्तार का भी टाइम होगा और उसके बाद ज़ाहिर हमारी ट्रांसमिशन खत्म होगी। तो मैम जुनैरा, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आज आपने बहुत कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और रेगुलर बेसिस पे जिस तरह आप आती हैं और दीनी तालीम से हम सबको आगाह करती हैं, तो उसका बहुत शुक्रिया। और मैम आप यहाँ आई आपको और भी खास बहुत करके शुक्रिया। प्रिंसिपल होके आपकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वहां से आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए और यहाँ पर आके माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुफ्तगू। क्योंकि होता यह है कि सिलसिला ये होता है कि स्कूल पे ब्लेम कर दिया जा रहा होता है, तो ये पेरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है कि उनकी अपनी कहाँ कोताहियां हैं, कि उन्होंने ऐसे कौन से डिसीजंस को प्रेफरेंसेस दी हैं जिसकी बुनियाद पे स्कूल वालों को भी डिसीजन लेने पड़ रहे होते हैं। तो अपने बच्चों की पहले तालीम पे तवज्जो खुद दें और तरबियत पे खास करके, जिस तरीके से मैम जुनैरा ने बताया कि जी पहली जो तरबियत गाह है वो तो गोद ही है, तो वहां से बिल्कुल हम बढ़ेंगे हमारा, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी करीब होगा। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ नातख्वां मौजूद हैं जवाद भाई, क्या सुनाएंगे आज नात में? हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। और शेर समाप्त कीजिए, बहुत खूबसूरत। ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए, ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए, आप राजी रहे और क्या चाहिए, आका राजी रहे और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं, दर्द जामी
ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بہت خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز. کیونکہ افطار کا وقت صرف میرے خیال سے 5 منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس. ہم چاہیں گے شجاع بھائی وہی اختتامی کلام جو ہم ہمیشہ ہی سن رہے ہوتے ہیں اور بڑی فرمائش آ رہی ہوتی ہے خاص کر کے ہمارے جو ناظرین یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آخری خطاب جو ہے جو سکون چاہتا ہے نا وہ دل ہی چاہتا ہے کہ وہ شجاع بھائی ہوتے ہیں. بالکل شجاع بھائی آپ جو ہے وہ اس کا آغاز کیجیے. میرا بادشاہ حسین ہے, حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی, یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے. ہاں حسین ہے, دین کی پناہ حسین ہے. کرے کوئی جو ہمسری کسی کی کیا مجال ہے, کرے کوئی جو ہمسری کسی کی کیا مجال ہے. کرے کوئی جو ہمسری کسی کی کیا مجال ہے. حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, ہاں یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے, سب کا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنوں, ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنوں. رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنوں. قبول ہوگی ہر دعا, ہاں قبول ہوگی ہر دعا, کسی سے کیوں ڈرے بلا. ہمارا واسطہ حسین ہے, ہاں حسین ہے, ہمارا واسطہ حسین ہے, ہاں حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے.